Hi everyone, welcome to the 25th episode of Dalim's podcast. I am Aditya Rai and we are going to have an inspiring conversation with two great visionaries and dynamic leaders from the Young Indians, an organization at the forefront of social change and entrepreneurship. Today, we are diving into their newest venture right there in Varanasi where innovation meets social impact. It's an honor to have with us Mr. Dhaval Prakash and Ms. Sakshi Peshwani, who are setting the stage for a brighter future. So, my first question to both of you is what is Young Indians and how is it related to CII? So, Young Indians is basically a youth wing of CII. CII being the Confederation of Indian Industries. So, we are the youth wing of CII. And does CII influence आपको कोई decision या आपकी working में आते हैं वो लोग? Definitely. CII is like the mother organization, they are the backbone behind YI. Our entire support system runs through CII. In fact, CII has a secretariat office in Varanasi and they have an executive member stationed in Varanasi. So, all the communication that happens between our YI chapter and the secretariat of CII, and even if there is any government engagement, or let's say if I need to go and meet some government official or anybody in from the society who is an influential person, the executive member joins us along with our team, and we go together to invite or to meet the government official or that person. So we work hand in hand. And can you dive a little bit deep आप दोनों लोग कि what does Young Indians do यहाँ पे? So, Young Indians is all about youth below 40, 18 plus. And Young Indians is working to build Bharat since Dhaval Bhaiya has brought Young Indian to Varanasi. So now Young Indian Varanasi is trying to build Varanasi in all kind of facets, education, gender equality, health, accessibility, road safety, बीट एनीथिंग या यूथ अपने किसी भी थॉट्स के साथ आएंगे और आइडिया प्रेजेंट करेंगे और फिर हम जिस अपना बेस्ट ट्राई करके सिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. If I was to sum it up in just three main pillars, which YI is defined by, is thought leadership, youth leadership, and nation building. So all the projects and initiatives that Sakshi just mentioned, they all come under one of these three pillars. So, the second question is what inspired you guys to join Young Indians? Sakshi, would you like to? Because देखिए from what I know कि आप लोग बहुत सारी organizations में already हैं, तो why Young Indians? Why did you guys join Young Indians? So I feel that Young Indians being, as I said, a part of CII, we have a very strong connect with the administration. So, and if we really want to bring about some change in the society, it cannot be done with a NGO or a organization alone. We need a partnership of the government and the administration. Then only impactful, meaningful, big changes can happen. So we really felt that the strength of this organization to bring about change in society is immense. And also, I am part of few NGOs also. I volunteer them. मैंने ये problems face की है. We come up with जो youth हैं हमारे NGO में, we come up with some idea. Let's do this through NGO for the city. We cannot make any changes in city if we do not have support of government. Any infrastructure, anything big we cannot do without support of government. Government के through जाने के लिए इतनी stairs चढ़नी पड़ती है कि sometimes वो idea drop हो जाता है. And after joining Young Indians, we have seen this change drastically कि through CII, जैसे धवल भैया ने बताया, हमारे EM है, जस्ट वो एक मेल डालते हैं गवर्नमेंट को और नेक्स्ट डे और मे बी सेम डे वी गेट द अपॉइंटमेंट.
go to meet government official. We approached our ideas and somehow we are now अब doing तो ये सब सुनने के बाद everything. आपके साइन अप्स जो भी देख रहा होगा तो 1000% बढ़ जाएंगे. हर किसी को ये बेनिफिट चाहिए. Because I didn't know about this, frankly speaking, ये सब चीजें. So, another very good thing about Vaya is everything is got to do with learning. So it's very easy to recognize a problem, crib about it, बैठ के बुराई करना कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. But अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं आता है, बट आप वो सीख तो सकते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे. वो तभी हो पाएगा ना जब आप किसी एक्सपर्ट से डिस्कशन करेंगे, उनसे सीखेंगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग सेशंस. सो इन टाइम्स टू कम यू विल सी दैट वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग many learning sessions, let's say on cyber safety, cyber security, or digital on digital platforms there are so many scams happening. Recently we did a program called EMRI training. It's emergency first responder training, in which we have a tie up with GMR. Okay, GMR, the company which makes the airports and all. So under their CSR, we have a tie-up with Vaya. We had called a professional doctor trainer from Chennai who came and trained students for a situation कि अगर आप कहीं public place में हो और किसी को heart attack आ जाए तो आप क्या करोगे. यूजुअली आप खड़े हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आता करना क्या है, बिकॉज बीइंग अ नॉन मेडिको आपको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. Right, but we are training people to do CPR. We are giving CPR training. Also, suppose आप कभी हाईवे पे जा रहे हो या रोड पे, कभी आपने कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखा, कोई जिसका एक्सीडेंट हुआ वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ब्लीड कर रहा है, लोग खड़े होकर के वहाँ पे वीडियो लेने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है. किसी को वायरल होना है. Sorry? हर किसी को वायरल होना है. Correct. But the importance over there is to save that person's life, right? And more than 60% people who lose their life during a road accident is because they reach the hospital late and it's due to bleeding. So a basic simple thing, if we can learn how to stop somebody from bleeding, आई थिंक दैट कैन सेव अ लाइफ. उसकी ट्रेनिंग अभी हम लोगों ने चालू करी है, एक कॉलेज में कराया है. एंड इन टाइम्स टू कम वी विल बी कैरिंग आउट दैट ट्रेनिंग इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस. इनफैक्ट उस दिन हम लोगों के चीफ गेस्ट आए थे, DCP ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल. उन्होंने हम लोग को कंसेंट दिया है कि पूरे वाराणसी के जितने ट्रैफिक पुलिस हैं हम लोग बैचेस में उनकी भी EMRI ट्रेनिंग कराएंगे. ऑल्सो बेस्ट पार्ट मुझे यंग इंडियन सा लगता है. एज अ YI मेंबर मैंने बोल दिया कि आई एम एक्सपर्ट इन गिविंग ट्रेनिंग ऑफ दिस एंड दैट. सो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, आप इसके प्रोफेशनल होंगे बट यू कैन नॉट गिव ट्रेनिंग बीइंग अ YI मेंबर टू एनीबडी अनटिल एंड अनलेस आप जो है YI के किसी प्रोफेशनल से ट्रेंड हो रहे हैं. So there is a मासूम vertical in YI. मासूम में क्या होता है, बच्चों को अंडर प्रिविलेज बच्चे, हमारे बच्चे, किसी के भी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है अबाउट गुड टच बैड टच. और बनारस में हम बालवाड़ी के लिए कई बार काम किए, तो वहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं. उनको उनकी तो यही समझ है कि गुड टच बैड टच ये कुछ होता ही नहीं है. इट इज़ नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, इसलिए हमारे साथ भी हो रहा है बिकॉज दे हैव ग्रोन अप इन दैट सोसाइटी. और उनके पेरेंट्स भी उनको यही बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट यंग इंडियन में जो मासूम की चेयर और को चेयर है वो चाहती हैं ट्रेन करना. वो ट्रेनिंग तभी देंगी जब यंग इंडियंस नेशनल उनको ट्रेनिंग देगा, वो सर्टिफाइड होंगी, देन दे कैन गो अहेड. ऐसी there's a NGO called Anuprayas. वो लोग ट्रेनिंग देंगे और आपको सर्टिफाई करेंगे एज अ ट्रेनर, सो दैट वट एवर नॉलेज यू आर इम्पार्टिंग वो गलत नॉलेज बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए. दे मेक श्योर कि कुछ भी रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए. और स्कूल्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी सिलीगुड़ी का जो चैप्टर है, दे हैड इनवाइटेड द फूड फार्मर. यू माइट हैव हर्ड there's a person who decodes all the ingredients behind the so he was invited there. and वहाँ उनके जो स्कूल है जिनसे MOU साइंड है, वहाँ पे उन्होंने जाके बच्चों को एजुकेट किया कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं
वो आप पढ़ के कैसे डिकोड करो कि आपको वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि जो मार्केट में मिल रहा है सब ठीक ही होगा, अगर कोई चीज़ गलत है तो गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं है. You will be in life, you will be served with multiple choices. You need to see what you want to consume and you need to educate yourself. That is what they did over there. उसके अलावा स्कूल्स के अंदर हम लोग वाटर बेल्स लगवाते हैं. क्या होता है, बच्चे अक्सर जो है पानी लेके तो आते हैं घर से बट पानी पीना भूल जाते हैं, तो आपके जो स्कूल की नॉर्मल पीरियड वाली बिल है उसके अलावा एक वाटर बिल स्कूल्स में लगवाते हैं विच रिमाइंड्स ऑल द चिल्ड्रन कि आपका पीने का आइडिया पानी को पीना है. तो स्टफ लाइक दैट. फिर वाटर वॉरियर हम लोग का एक इनिशिएटिव होता है जिसमें हम लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं कि आप अपने दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ में कितना वाटर यूज़ करते हैं, और जैसे ब्रश करने में कितना पानी यूज़ होता है, नहाने में कितना पानी यूज़ होता है, एंड देन दे आर आस्क्ड टू मेक मेजर देयर ओन वाटर यूजेज एंड देन दे बिकम मोर कॉन्शियस. ये भी आइडिया कॉपी हो गया आपका, लिखते रहो यार ये सब. We'll be more than happy to execute the idea in a very well-tamed manner. Right, अरे तो मैं तो always ready हूँ इसी से. So we can do it. So these are really nice initiatives जो आप लोग सब ले रहे हैं. एक initiative what I want you guys to take is कि टोटो ड्राइवर्स को आप लोग ड्राइव करना सिखा दें यहाँ पे. So Road safety. So we have a vertical called road safety. उसमें एक प्रोग्राम होता है छोटा कॉप. So जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनको रोड रूल्स और ड्राइविंग लॉज के बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं, और एक उसका स्कोर कार्ड उनको दिया जाता है. तो बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठे हैं या आप अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे हैं, उनके ड्राइविंग स्किल्स पे वो उनको मार्क करते हैं. सो अब जस्ट इमेजिन इफ योर किड इज सिटिंग इन द कार एंड इफ ही इज टेलिंग यू और शी इज टेलिंग यू कि पापा आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है, आप इंडिकेटर क्यों नहीं दे रहे हैं, कल से आप अपने आप उसको फॉलो करना चालू कर दोगे. एंड इफ दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिस थ्रू आउट द सिटी, मुझे लगता है इन जनरल ट्रैफिक यहाँ का बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. बहुत ज़्यादा सही improve बात है, होएगा. सही बात है. Honking. If you could describe the VI Varanasi chapter's mission in one sentence, what would it be? Would you like to take it? So, as we have told, VI Varanasi का motto है to make Kashi first accessible. Accessible. Anybody would like to tell क्या है धवल भैया? So accessibility basically means to create inclusiveness for specially abled people. So for example, कोई अगर visually impaired है तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो एक different section of society है, उनको हम अलग से एक विद्यालय में छोड़ दें और वो लोग अपना अपना करें. ऐसा नहीं है. They are also, they're just born with something, they're just unfortunate to have been born with something which cannot make them as accessible as we are, right? So our aim is कि हम ऐसी public places जैसे आपके मंदिर हो गए या आपके रेस्टोरेंट्स हो गए या इन जनरल पार्क्स हो गए, वहाँ पे हम लोग ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करें जहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग भी इंडिपेंडेंटली आ पाए, उनको डिपेंडेंट ना होना पड़े कि उनके साथ कोई वॉलंटियर है हमेशा चल रहा है. इंडिपेंडेंसी लानी है सारे लोगों के लिए. मैं हूँ, बूढ़े लोग हैं, स्पेशली एबल्ड है. अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आजकल वीगन होना, ग्लूटेन फ्री फूड एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट चीज़ें लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ट्रेंड हो गई हैं. तो जब ये ट्रेंड हुई, रेस्टोरेंट्स को, शेफ्स को इनके बारे में पता चला कि ये पीपल की डिमांड है, तब इनकी सप्लाई होने लग गई रेस्टोरेंट्स में. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वी शुड नो समवन्स प्रॉब्लम. Being blind, being deaf is just part of life. ये उनकी प्रॉब्लम है. तो हम जब इस प्रॉब्लम को समझेंगे और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, देन हम दोनों में भी शायद पार्क में एक साथ बैठ रहे हैं एंड अननोन है, मैं पार्क में enjoy कर रही हूँ, someone's blind is coming, they are also enjoying, we can interact, we can exchange our thoughts, we can understand and come up with new ideas. जैसे one of the things is that we would want to do in the near future is कि सारे जो public parks हैं उनमें एक wheelchair swing हो, कि आप अपने wheelchair के साथ में swing
के ऊपर wow, बैठ कर that is really noble. वो कर सकते हो, या जो वो छोटा मेरी गो राउंड टाइप ऑफ होता है वो भी व्हील चेयर के साथ हो सके, सो स्टफ लाइक दैट. अब जैसे हम लोग ने वीसी साहब से बात करी थी कि जो रोप वे आने वाला है बनारस में उसको हम लोग कैसे एक्सेसिबल बनाएं, कैसे इंक्लूसिव बनाएं. सो मोर और लेस ही हैज़ गिवन अस अ कंसेंट कि हम ब्रेल साइनेजेस लगा सकते हैं रोप वे में, और जो भी आगे बड़े मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है सब जगह रैम्प्स बने जिससे कि लोग व्हीलचेयर से वहाँ जा सकें. तो स्मॉल थिंग्स लाइक दिस. जैसे वाया सिलीगुड़ी ने एक पूरा रेलवे स्टेशन बनाया है एंड इट इज़ ऑल एक्सेसिबल एनीबडी. क्या किसी कोई चल नहीं पा रहा है, किसी के हाथ नहीं है, कोई देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वहाँ पे इतनी अच्छी उन्होंने फैसिलिटी डेवलप की है कि आप जो है खुद इंडिपेंडेंटली टिकट्स काउंटर पे जाइए, आप टिकट बाय करिए, और सारे साइनेज लगे हैं, एवरीथिंग. मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ट्रेन बोर्ड करने में. आप ट्रेन में जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं. इतना अच्छा रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया है. मतलब मैं आई विल आस्क यू, रिक्वेस्ट यू एंड यू ऑल्सो कि आप यूट्यूब पे जाएं एंड वाया सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन एक्सेसिबल सर्च करें और उसका वीडियो देखें, कितना अच्छा उन्होंने स्टेशन बनाया है. सो ऑल वाया चैप्टर शुड डू इट, एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वांट टू कम अप विथ सच आइडियाज शुड डू दिस. Apart from this, these days there's a lot of concern in the society about mental health. Right. So there's a lot of work happening in YI across India, where they were organizing marathons for mental health and to make the society drug free as much as possible. So there are many things which are related to mental health also which we are doing, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से बनारस में तो कोई नहीं कर रहा है. आगे हम लोग कोई नहीं कर रहा है. करेंगे. So tell me something, जैसे आप दोनों लोग राउंड टेबल का भी पार्ट है, हाउ इज राउंड टेबल डिफरेंट टू मतलब यंग इंडिया, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आप लोग को लगता है? सो धवल भैया बहुत टाइम से राउंड टेबल का पार्ट है, मुझे तो अभी कुछ ईयर्स ही हुए हैं. धवल भैया के पास भी लॉट ऑफ आइडियाज हैं टू डू डेवलपमेंट्स इन सिटी एंड अदर NGOs. हमारे पास भी बहुत आइडियाज़ हैं, बट वही सेम बात क्या होती है कि आइडियाज़ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते जब तक हमारे पास एक ब्रिज नहीं है गवर्नमेंट तक पहुंचने का. और यंग इंडियंस में हम क्या कर रहे हैं, वो सारे आइडियाज़ हम गवर्नमेंट को तुरंत पिच कर पा रहे हैं और फिर वो हमें हेल्प कर रहे हैं दैट यू शुड गो इन सच डायरेक्शन, बिकॉज वो उसी के लिए काम कर रहे हैं. दे आर सिविल सर्वेंट्स. उनका मोटो ही है कि हम देश के लिए काम करें, तो वो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे जाएंगे तो ये काम ईजिली नहीं होगा, बट आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका काम तुरंत बन जाएगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यंग इंडियंस ऑल, मतलब उनका मोटो है बिल्ड भारत बिल्डिंग. दे आर एक्चुअली डूइंग इट. Also, the difference what I can also sense is that in YI, maybe the concerns are going to remain the same. जो problems है society में वो सही same बात है. रहेंगी, but उनकी जो solutions हैं they can be sustainable, they can be impactful, they can be scalable. So YI में जो भी project हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग problems के solution provide करते हैं, we try to implement it in such a way कि वो long term तक carry forward हो सके. सिर्फ एक बार करके उसको हम लोग छोड़ दें ऐसा नहीं. तो we are not running behind any kind of competition, or we're not trying to prove ourselves that we are doing better work than any other organization. Right. But we are here to make an impact, and this is something that goes from the top of the organization till the chapter level, that we want to make an impact. For example, rural initiative हम लोग का एक vertical है. So one of the things that we want is जैसे menstrual hygiene is also a concern these days. तो हम चाहते हैं कि हम rural areas में अगर कोई sanitary pad making ट्रेनिंग करा दें, वहाँ पे एक मशीन हम लोग अगर डोनेट कर सकें, और जो वहाँ गांव की लेडीज़ हैं वो खुद ही वो सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चर करें और खुद ही अपने गांव में उसको सेल करें एट अ रीजनेबल प्रॉफिट. तो उससे सब लोग उसको यूज़ भी करेंगे और वो सेल्फ सस्टेनेबल आइडिया भी होगा. ये नहीं कि आप गए, आपने बस वहाँ पे सैनिटरी पैड्स एक दिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और आप आ गए. उससे क्या होगा, एक बार तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एनी परमानेंट चेंज इन देयर लाइव्स, राइट? We want to bring about permanent change in life.
I think that is one major difference. और विद दिस आइडिया रूरल एरियाज में क्या होता है, मेल ऑल्सो नॉर्मलाइज दिस थिंग. वहाँ पे जब भी बात करने हम जाएंगे तो बहुत सारे घर ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे ये बात करना ही टैबू है. अरे आप जो है सैनिटरी पैड लेने जा रहे हैं, ब्लैक प्लास्टिक में लेकर आएंगे, पेपर में साड़ी के नीचे छुपा के लेकर आएंगे. बट ऐसे इनिशिएटिव लेने से क्या होता है ना, डेली आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है ओके इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ओके, ये कोई टैबू वाली बात नहीं है. एजुकेशन भी बिल्ड होता है आपका, आपके आने वाली जनरेशन का भी एजुकेशन बिल्ड होता है, और आप फिर ग्रो कर ही रहे हो जब आप एजुकेट हो रहे हो प्रैक्टिकल चीज़ें देख के. 1 और 2 धवल भैया ने जैसे मेंस्ट्रुएशन की बात की, तो ये तो रूरल इनिशिएटिव है. मैंने वाई के किसी चैप्टर में देखा था, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रहा था उनका, कि वो स्कूल्स में डालिम सनबीम जैसे बनारस में स्कूल हैं, वो अपने सिटी के रिनाउंड स्कूल्स में जो अडोलसेंट बच्चियाँ होती हैं क्लास 5, 6, 7, 8, तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को एजुकेट नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुएशन के बारे में. दे आर एजुकेटिंग बोथ मेल एंड फीमेल. पहले मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में हुआ करती थी क्लास 5, 6 में, तो बॉयज़ को क्लास से निकाल दिया जाता था कि भाई दिस इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फीमेल थिंग्स. बट नाउ यंग इंडियंस आर डूइंग दैट दिस इज़ नॉट about females, this is about humans and all of us should know about this. someone किसी के साथ ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हो रहा है, किसी मेल को पता है तो वो उसको हेल्प कर सके, कंफर्टेबल फील करा सके. वो कॉन्डसेंडिंग थॉट नहीं होनी चाहिए, अरे ऐसा हुआ है, ये हुआ है, मतलब डोंट नो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. सो आई रियली लाइक दिस आइडिया दैट यंग इंडियन इज टेकिंग. हम लोग अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट वी जस्ट गेट अप एंड टॉक टू देम और जाके कोई प्रोजेक्ट कर दिया. वी हैव अ प्रॉपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. सो इफ इन केस वी वांट टू ऑनबोर्ड डालिम्स, वी विल सेंड यू प्रॉपर MOU. You will have to read through its terms and conditions. You will also have to follow certain things that we expect you to follow, and you will sign that MOU, which will be renewable every year. And against that MOU, we will then carry out various projects in your school. But there is no ad hoc type वाली चीज़ नहीं है, proper है process. That is very good. That is very good. So जब इतने rules होते हैं, इतना discipline होता है, तो वो चीज़ें longer run में चलती हैं. And then the focus is from both the sides, right? You know that if we have onboarded your school, तो our focus will be कि हम जो कर रहे हैं हम आपके स्कूल में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ओपन लैंड है विच इज़ लाइंग वेस्ट, आपको उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. अंडर क्लाइमेट चेंज वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस who can help you create a Miyawaki forest here. अरे वाह. So you know, so we have numerous cases throughout India where YI chapters have reclaimed barren lands and they have made Miyawaki forest, acres and acres of Miyawaki forest. So just normal tree plantation जो हम लोग करते हैं उससे तो एक पेड़ उगता है ना, हम यहाँ पे फॉरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं. आप सोचो अगर एक फॉरेस्ट हम क्रिएट करेंगे तो एक बार में कितने पेड़ उगेंगे. एंड Miyawaki forests are very they last for a long time, they don't require much of care like day to day, ऐसा कुछ नहीं है. तो you can dedicate one piece of land and create a Miyawaki forest. और यंग इंडियन का थॉट ये है टू ऑनबोर्ड वेंडर्स एंड स्कूल्स जिनके साथ भी हमें जो प्रोजेक्ट्स करना है, कि पहला थॉट है कि भीड़ इकट्ठी ना हो जाए. अब जैसे कोई रूल नहीं है ऑनबोर्डिंग का, मेरे जब मन किया मैं जो है क्लाइमेट चेंज को हेड कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में भी कोई और यंग इंडियन मेंबर हेड करेगा. सो क्या होता है कि आज मैं डालिम स्कूल के साथ वर्क कर रही हूँ, मैंने 6 months किया, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम फ्यूचर में भी यंग इंडियन के साथ काम करेंगे. बट नई टीम आई, अगर डालिम्स ऑन बोर्डेड नहीं है, उनका किसी के साथ रिलेशन है, वो उस स्कूल के साथ काम करने लग गए. तो डालिम्स में जितना काम हुआ है, जो पूरा नियर फ्यूचर में कंप्लीट करना था, वो हुआ ही नहीं. सो ये चीज़ें सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं. आई नो दिस बिकॉज everybody has worked this and we are lacking all these points. Young Indian, I think, it's not lacking. You asked about roundtable. Roundtable का motto है
फ्रीडम थ्रू Yeah. एजुकेशन, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। यंग इंडियंस क्या करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एजुकेट करता है। Okay. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग लर्निंग सेशंस इन एग्जिस्टिंग स्कूल्स, सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आजकल गवर्नमेंट भी बना रही है, प्लस वो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वो है, उसकी भी ज़रूरत है, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे से ज़्यादा लर्निंग इम्पार्ट करने पे, कि जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में हैं, जो ऑलरेडी आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन को और कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन बना सकते हैं। अगर मैं सम अप करूं, बेसिकली राउंड टेबल एंड बाकी जैसे और ऑर्गेनाइजेशन वैसी हैं, वो लोग एक प्लांट लगाती हैं, आप लोग का काम होता है उस प्लांट से फॉरेस्ट कैसे बनाना है वो करना है। इस नॉलेज को मैं यूज़ करूँ, उस प्लांट से फॉरेस्ट कैसे बन जाएगा। Absolutely. थैंक यू गाइस। So, like in the problem solving stage, what are the factors? Like, अगर मैं किसी problem का solution ढूंढ रहा हूँ, तो what are the factors? So first you identify the problem, right? And then whoever is the decision maker of the particular agency which is supposed to handle that problem, that person needs to be understood. उसको explain करना ज़रूरी है कि ये problem exist करती है, और वो जो responsible person है वो उस problem को पहले accept करें कि हाँ ये problem exist करती है, बिकॉज वो अगर उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो फर्स्ट इज यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू मेक द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्सेप्ट दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, देन यू टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स हु हैव probably got education in the particular field which can help you resolve that problem. You get into the process of learning, and then in collaboration with those experts, then you find the solution. And this is my understanding. नहीं, absolutely. I second what धवल भैया has just said कि यही process होना चाहिए. So, अगर किसी individual के पास, if he has a better solution, so how can he approach to young Indians? We are available on social media platforms. I think that's the easiest way to reach anyone in today's time. हमारा Instagram page है Young Indian Varanasi. You go, follow, like, share, and whatever the projects नीचे are बैनर डाल दिएगा happening, हाँ, हम उस पे रोज पोस्ट करते हैं, आप उसको शेयर करो। और सिटी, दिस इज ओपन फॉर एवरीबडी। सिटी में किसी को भी लगता है कि वो आके हमें हेल्प कर सकते हैं एनीवे, प्लीज मैं तो कॉन्टैक्ट। भैया को कॉल किया था कि हम लोग को न्यूज़ के साथ इसको कोलैब कर दें कुछ चीज़ों में, बहुत बहुत अल्टीमेट रहेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जो न्यूज़ वाले में जो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज की फाइंड प्रॉब्लम्स एंड देन सोल्यूशन। तो आप लोग उससे सोल्यूशन अगर में हेल्प कर दें, बिकॉज वी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते। बोले थे कि डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होती है उसको एक्सेप्ट कराओ। सो आज आपके पास 100% चांसेस है डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है, आपको जो जो कराना है आप सब आज। And also, like you said, कि कैसे अप्रोच करना है, so YI and CII they have a permanent brick and mortar physical office in बनारस, जो अमर उजाला प्रेस का ऑफिस है, उनके कैंपस के अंदर हमारा परमानेंट ऑफिस है, जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर इट इज एट चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया। मिस्टर हर्षित पांडे इज द एग्जीक्यूटिव मेंबर हु इज पार्ट ऑफ CII, एंड वो वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं, तो वहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हो। वी हैव अ ईमेल एड्रेस ऑल्सो yi.varanasi@cia.in, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। नहीं तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो थ्रू माहिर ऑल्सो यू कैन अप्रोच। So, sir, can you please tell us about any YI Varanasi's ongoing projects? 10th of October को we have taken this initiative called YI Accessible Varanasi. और YI Accessible Varanasi हमारा ये जो नाम है ये लॉन्गर रन के लिए, हम इसमें तब तक काम करते रहेंगे जब तक वाराणसी एक्सेसिबल ना हो जाए अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ वाराणसी। तो इसका फर्स्ट इनिशिएटिव हमने लिया है ब्रेल मेन्यू लॉन्च। ब्रेल इज़ द लैंग्वेज रीड बाय ब्लाइंड पर्सन। सो जैसे मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आती है, मुझे फ्रेंच नहीं पढ़ने आती है, एंड इफ़ यू गिव मी अ फ्रेंच बुक आई वोंट बी एबल टू रीड इट, राइट?
you only know how to read Hindi. I'll give you French book. You won't be able to read in French. So blind लोग भी जो है सिर्फ ब्रेल ही पढ़ सकते हैं ना. हमेशा से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं ये सुनते हुए ब्लाइंड हैं, बेचारे हैं, अंध विद्यालय जाते हैं. हम जा रहे हैं किसी ओकेजन पे, बच्चों को बोल दिया है कि आप प्लीज़ कोई परफॉर्मेंस दे दो, संगीत कर दो, ये कर. अच्छी बात है ये सब, बट सेम पैटर्न पे चीज़ें हो रही हैं. आफ्टर जॉइनिंग यंग इंडियन और एक्सेसिबिलिटी की चेयर होने के बाद, नेशनल मेंटर से बात करने के बाद समझ में आया दैट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. माई नेशनल मेंटर टोल्ड मी, और जो भी मैंने लर्निंग सेशन अटेंड किए उन्होंने बोला ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई कॉज नहीं है. It is as equal as gender equality and social equality. This is what we are trying to give to the city and nation. कि पहले तो आप समझिए कि इक्वालिटी लानी है, ये कोई कॉज नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इक्वालिटी इन बनारस. फर्स्ट इनिशिएटिव है ब्रेल मेन्यू लॉन्च. उसमें हम 16 रेस्टोरेंट्स में ब्रेल मेन्यू लॉन्च कर रहे हैं. और कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जाएगा, वहाँ पे बोलेगा आप हमें मेन्यू दीजिए, ही कैन रीड द मेन्यू और शी कैन रीड द मेन्यू. और वो उनको कितना हैप्पी मोमेंट होगा उनकी लाइफ का कि भाई आप मुझे आज फार्म हाउस पिज़्ज़ा खाने का मन है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं और आप जो है ऑर्डर करिए और खाइए. सो सिंस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो while doing this project ब्रेल मेन्यू, मुझे पिज़्ज़ेरिया से, टेराकोटा रेस्टोरेंट से ये बातें पता चली कि माइकल करके एक फॉरेनर है. बिफोर कोविड ही यूज्ड टू कम टू वाराणसी एवरी ईयर. ही यूज्ड टू कम फॉर अ इंडिया टूर. एंड देन व्हाट हैपेंड कि वो पिज़्ज़ेरिया बहुत जाते थे और वो जाके यही बोलते थे कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं वेटर का हाफ एन आवर लेता हूँ, उससे मेन्यू रीड करवाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं वापस उससे मेन्यू रीड करवाता हूँ, देन आई चूज़ कि मुझे क्या खाना है. बट क्यों ऐसा हो रहा है वाराणसी में? मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बॉम्बे जाता हूँ, देयर आर रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ब्रेल मेन्यू अवेलेबल है और मैं रेस्टोरेंट्स पे इंडिपेंडेंटली जा पाता हूँ. बट यहाँ पे मुझे हमेशा अपने फ्रेंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. वाई देयर इज़ नो फैसिलिटी. Along with Braille menu, we're also introducing audio menus. राइट. ये सारे रेस्टोरेंट्स में QR कोड्स अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पे आप सिंपली स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके ऑडियो मेन्यू भी अपने गेस्ट को, अपने कस्टमर्स को सुना सकते हैं. अरे वाह. सो वेटर है, उन्होंने स्कैन किया और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको अपना फ़ोन दे दिया कि भाई आप सुनिए, आपका जो मन है आप ऑर्डर करिए. तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी. वी आर नॉट डूइंग एनी सोशल वर्क और कॉज. ये कॉज है ही नहीं. बिकॉज अच्छा, हाउ डू यू गाइस गेट द आइडिया फॉर ब्रेल मेन्यू? बिकॉज दिस इज समथिंग जो मतलब काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी इसके लिए. यंग इंडियंस का इनिशिएटिव है. यंग इंडियन में किसी यूथ को ये आइडिया आया होगा, उन्होंने इस बात को समझी होगी और फिर उनका ये इनिशिएटिव है. जब से वाया वाराणसी लॉन्च हुआ है, सो वी हर्ड अबाउट ब्रेल मेन्यू. और फिर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपका एक पाथ फाइंडर होता है. पाथ फाइंडर में हमें जो एजुकेट करने आए थे उन्होंने भी हमें इसके बारे में ब्रीफ दिया. एंड यंग इंडियन नेशनली रैडिसन के साथ पार्टनर किया है उन्होंने, और रैडिसन 48 रेस्टोरेंट्स में अपने ब्रेल मेन्यू लॉन्च किया है. सो इसका पूरा मीडिया कवरेज हुआ है. जो रैडिसन के एशिया के हेड शेफ हैं, उन्होंने ये इनिशिएट किया कि वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम पूरे एशिया के रैडिसन में ब्रेल मेन्यू तो लॉन्च करें. सो इट इज़ अ बेबी आइडिया ऑफ यंग इंडियंस ओनली. ऐसा नहीं है कि हम बनारस में आइडिया लेकर आए हैं. वी कम अप विद दिस आइडिया थ्रू यंग इंडियंस. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग वाया में करते हैं. इट्स कॉल्ड डाइन इन द डार्क. Right. So basically, to make you feel the importance, of Braille menu is what हम लोग ये बहुत soon we are planning to do this. हम लोग क्या करेंगे कि एक बैंक्वेट हॉल बुक करके उसको पूरा डार्क कर देंगे, सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और जितने भी हम लोग के मेंबर्स होंगे उनको VR सेट्स पहनाए जाएंगे और जो वेटर्स हैं
उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो अंधेरे में कैसे हम लोगों को खाना सर्व करें, और हम सब लोग अपने टेबल पे जाएंगे और हम लोगों को अपनी आँख मतलब विदाउट सीइंग यहाँ पे आँख बंद करके अपनी कटलरी पिक करनी है, लोगों को खाना खाओ। वो जो एक्सपीरियंस होता है जिन चैप्टर्स ने इसको किया है, जिससे कि वही खाना आपको 2 टाइम्स ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, एंड आपको ये समझ में आएगा कि कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए एक सिंपल बेसिक चीज़ खाना खाना भी कितना डिफिकल्ट होता है। तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि काश मैं इनके लिए जो कर सकता हूँ। पता है सिंगापुर में एक रेस्टोरेंट है, डाइन इन द डाकी उसका नाम है, Okay. जो एग्जैक्टली यही करता है। पर क्या ट्विस्ट है कि जो वेटर्स हैं वो सब ब्लाइंड है वहाँ पे, Oh. एंड पूरा डार्क में वो लोग करते हैं एकदम, मतलब मैं हैव बीन देयर, तो इतनी सी भी लाइट नहीं होती उसमें। देन यू हैव टू गो इन देयर, एंड आपको जैसे वो बिठा देंगे आपको और कटलरी, लेकिन वो आपको हाथ में दे देंगे, लेकिन खाना और सब आपको एकदम अंधेरे में करना है, एंड यू गाइस टॉकिंग टू ईच अदर और कुछ भी दिख नहीं रहा है, एंड इट इज नेक्स्ट लेवल। एंड क्योंकि दे आर ब्लाइंड, दे ऑलरेडी नो कैसे सर्व करना है, सब करना है, सो दे देव काउंटेड स्टेप्स एंड एवरीथिंग, सब आके वो सर्व करते हैं। इट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, बट इट इज मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगा इतनी इस टाइप की चीज़ें यहाँ बनारस में देख के। हाँ, सो मतलब बनारस में यंग इंडियन वाराणसी चैप्टर जो लॉन्च हुआ है, हमारा तो पहले टारगेट है कि हम वही चीज़ें सिटी में लाएं जो ऑलरेडी यंग इंडियन नेशन वाइड कर रही है। यू विल ऑल्सो कम टू नो माई फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके फ्रेंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ अस विल कम टू नो कि भाई हो कितनी सारी बातें हैं जो हमें कभी पता ही नहीं थी, वो पता चल रही है थ्रू यंग इंडियन। स्कूल लेवल पे बिफोर इवन आवर चैप्टर वाज लॉन्च्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज YI पार्लियामेंट। So YI पार्लियामेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनफैक्ट बनारस के एक स्कूल से कुछ बच्चे गए भी थे नोएडा, तो आई एम श्योर सबको पता होगा जैसे मतलब पार्लियामेंट MUN काइंड ऑफ। तो YI अलग से एक नेशनल लेवल का YI पार्लियामेंट होता है, जिसमें हम लोग अपने ऑनबोर्डेड स्कूल से बच्चों को नॉमिनेट करते हैं, वो लोग फिर नेशनल लेवल पे जा करके पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली कॉलेज लेवल पे हम लोग उसको युवा बोलते हैं। कॉलेज, हमारे जो ऑनबोर्डेड कॉलेजेस हैं वहाँ से हम बच्चों को नॉमिनेट करते हैं जिनके पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो, और अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उनको IIT चेन्नई में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एंड उनकी हैंड होल्डिंग उस लेवल तक की जाती है कि उनको पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट से मीटिंग करा करके उनको फंडिंग भी मिल जाए, वहाँ तक की हैंड होल्डिंग पूरी YI उन बच्चों के साथ करता है। और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट मैंने अभी जितना एक्सपीरियंस किया है वर्ल्ड को, मुझे लगता है इंडिया में YI ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवा वर्टिकल में ये चीज़ें कर रही है। नहीं तो हम जब कॉलेज में थे हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था भैया। आप इंटरव्यू दीजिए, आप सिलेक्ट हुई, अपनी कैपेबिलिटी में देयर वाज नो गाइडेंस। फिर उसके बाद ये काउंसलिंग का कल्चर आया, आप काउंसलर से मिलिए, आपको पता चलेगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और क्या होता है ना, बच्चे, कॉलेज के बच्चे यूथ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। YI is the voice of youth globally. It is the only organization which is born out of India and made for India. बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर से हो क्या है? सारे बाहर से होके यहाँ पे आए हैं। इंटरनेशनल, A part of the fees or the contribution that you give always goes outside your country, but when we contribute towards YI, it all remains in the country, so it also makes a difference. अच्छा, अगर आप लोग को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाएं, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट, अनलिमिटेड एवरीथिंग, तो आप लोग वाराणसी में क्या चेंज लाएंगे? मैं बोलना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ बनारस की ट्रैफिक से। तो पहले तो मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट करूँगी। जैसे सूरत, इतने फ्लाईओवर्स हो गए हैं सूरत में, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट मुझे ऐसा लगता है उससे हो पाएगा। और रही बात टोटो की, तो टोटो का सिस्टम ये लाएंगे, जैसे साउथ बॉम्बे में ऑटो नहीं अलाउड है, तो PDR मॉल के आगे का कुछ एरिया ओनली एंड ओनली फॉर टोटोस, नो कार, नो बाइक्स, नथिंग, like heritage zone or no vehicle zone. राइट। मतलब टोटोस तो क्रेजी हैं, आप जा रहे हैं तो आपको ऐसे करके निकल जाएंगे, कहीं भी पार्क कर देते हैं, समझ ही नहीं आता है। और जैसे मैंने देखा है कि कब मेरा ऑफिस गदोलिया पे है, हार्ट ऑफ द सिटी, अगर मुझे स्कूटी से भी जाना है
मैं सोचूं मैं किसी शॉर्टकट लेके किसी गली से गदोलिया पहुंच जाऊं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे टोटोस की लाइन लगी है, क्योंकि गुरुबाग से टोटोस को जाना मना है। तो अब वो क्या करते हैं, वो गलियां ढूंढ लेते हैं। बनारस में गलियां तो अभी भी बहुत सारी हैं, दे विल फाइंड सम गली और वो निकल जाएंगे। आप कहीं से भी नहीं जा सकते, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। स्कूटी जो चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं, उनके लिए भी बिकॉज ऑफ दिस टोटो। I feel all in all the infrastructure of our city is really stressed. It is being overutilized. I think हम लोगों के शहर का जो existing infrastructure है वो इतनी बड़ी population के लिए बना ही नहीं है। जो हम लोगों के यहाँ की resident population है, हम लोगों का infrastructure उस resident population को ही support करने के लिए enough नहीं है। And on top of that, अब tourism इतना बढ़ गया है कि हमारे city में जो floating population है वो कहते हैं आज के टाइम में 1 लाख tourist almost on an average daily इस शहर में नया आ रहा है। सो यू नो एवरी डे 1 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा माहिर ने बोला कि इफ़ वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, आई थिंक मेरा थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि हम लोग एक नया बनारस क्रिएट करें। बनारस के जो आउटसाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे ओपन लैंड बैंक्स हैं, वहाँ पे एक न्यू बनारस को सेटअप करें और प्रॉपर फेज्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में, जैसे हरियाणा में, चंडीगढ़ में जैसे प्रॉपर ब्लॉक्स बने हुए हैं, उस तरीके से हम सिटी को प्लान करें। मतलब एक पूरा चंक ऑफ लैंड में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और एक रेसिडेंशियल सोसाइटी सब कुछ हो, सो दैट सिटी जो एक लिमिटेड एरिया में सबको अभी रहना है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर है नहीं, तो सिटी थोड़ा सा आउटग्रो करे, तब अपने आप सबके लिए इट विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरीबडी। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, so many vehicles keep getting added on to the city on the roads every month. जिस पेस पे हमारा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है उसके 10 टाइम्स पेस पे हमारे सिटी के अंदर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर वील ऑल स्टार्ट फीलिंग चोक्ड. So before we all feel that we don't want to live in this place, there is high time I think somebody should take a call and एक न्यू बनारस का डेवलपमेंट होना चाहिए. आई सेकेंड दैट, और न्यू बनारस का ही डेवलपमेंट होना चाहिए. आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन बनारस एंड आई लव दैट ओल्ड बनारस वाइब. मुझे तो बहुत पसंद है उन गलियों में जाना, रबड़ी खाना, मलाइयो खाना. आई लव दैट वाइब ऑफ बनारस. बट अब हम वो लैग कर रहे हैं क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आप इतने टायर्ड हो जाते हो. उस चीज़ को एंजॉय करना है, आप ऑन द वे इतने टायर्ड हो गए फिर आप एंजॉय नहीं कर पाते हो. सो नाइस आइडिया धवल. पीपल शुड वर्क ऑन इट. समवन शुड टेक दिस इनिशिएटिव. How do you balance your professional commitments with your dedication to community service through YI? That's a good question. I will not disagree. It is definitely very difficult to manage your professional life along with community service. But at the same time, it's just about setting up your priorities. आज हम लोग अगर पढ़ लिख करके हम लोग अगर कुछ कर पा रहे हैं, अगर हम एक बिजनेस कर पा रहे हैं या हम किसी प्रोफेशन में हैं, तो इस समाज ने ही हम लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग आज जो हैं वो बन सके. तो इट्स टाइम दैट वी शुड ऑल्सो पे बैक टू द सोसाइटी, राइट. तो जिस दिन आपके मन में आ जाए कि नहीं, आपने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है अपने जीवन में, उसको आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी यूटिलाइज करना चाहते हो और देश के ऐसे समाज के लिए यूज़ करना चाहते हो अपनी एजुकेशन को कि जिन लोगों के साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं बट उनके पास उतनी शायद सोचने की शक्ति नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वहाँ पे आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आई थिंक अपने आप अपने टाइम को मैनेज कर लोगे. ट्रू. और मुझे तो मज़ा आता है. आई जॉइन राउंड टेबल, यंग इंडियंस, अदर NGOs. इफ़ आई डू नॉट commit myself to society, if I stop doing anything for the society, तो मुझे लगता है मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं कर पाऊँगी. ये तो मेरे लिए किक है सोसाइटी के लिए काम करना. और आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग माई फादर
डूइंग वर्क फॉर सोसाइटी. आई कम फ्रॉम अ माहेश्वरी फैमिली एंड मैंने देखा है कि इंटरनेशनली पूरी माहेश्वरी कम्युनिटी दे वर्क फॉर द सोसाइटी. उनका मोटो ही है कि आपको सोसाइटी को देना ही देना है. सो मेरे लिए और क्या होता है ना कि आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, आप सेटल्ड हो, फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करोगे? आप अपनी एनर्जी को, अपने विजन को कहीं तो यूटिलाइज करोगे. एग्जैक्टली. और दिस इज़ द बेस्ट लर्निंग. जब आप कम्युनिटी के लिए काम करते हो, सोशल चीज़ों के लिए काम करते हो, तो ये आपकी बेस्ट लर्निंग है. और दिस इज़ द ओनली वे यू इवॉल्व एज अ बेस्ट ह्यूमन. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बोलूँ, आपके क्वेश्चन का ही आंसर. जैसे हम लोगों ने बोला कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का हमारा थॉट है, तो नाउ दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं उसी लिमिटेड टाइम में अपना काम भी करना चाहता हूँ और मैं कम्युनिटी सर्विस भी करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए भी एक लर्निंग है. सो वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स लाइक केवल किशन बिजनेस ऑटोमेशन वर्कशॉप, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपके जो वर्क के फंक्शंस हैं जिसमें पर्सनली आप इन्वॉल्व रहते हो, वो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के भी कैसे ऑटोमेट हो सकता है. अगर वो आप सीख के इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप अपने वर्क में से वो टाइम कार्व आउट कर लोगे और वो टाइम आप कम्युनिटी सर्विस के लिए निकाल सकते हो. सो जो हमारी लर्निंग वाली थॉट है, वो इस प्रॉब्लम के लिए भी हम यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं. आप MBA करो, इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, और आर यू अ कॉमर्स स्टूडेंट? I'm a science student. आर यू अ कॉमर्स स्टूडेंट? हाँ. सो कॉमर्स स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको BST में फर्स्ट और MBA में फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लाइन ये दी जाती है कि यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू आर अ गुड मैनेजर ओनली इफ़ यू कैन मैनेज ऑल योर थिंग्स बाय अदर्स. आपका मैनेजमेंट स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप वहाँ नहीं हो बट आपके पीछे से सारी चीज़ें एकदम वैसे ही हो रही हैं जैसे आप चाहते हो. So we have dedicated courses for VIA members with a tie-up in Stanford University also. So one batch of VIA members go every year to Stanford for particular topics to learn. So and one of the most common topics is again how you can manage your work in a better way. So all those learnings also really help you to manage the commitments work professionally as well as towards commitment. ये पॉडकास्ट हम लोग आपके चैप्टर के चालू के पहले कर लिया होता, स्टार्ट होने के पहले आप लोगों का कम से कम मिलियन लोगों की वेट लिस्ट होती, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग. मतलब ये सब चीज़ें मुझे एकदम आई हैड नो आइडिया. एंड माहिर, आई टेल यू, सोशल वर्किंग में तो बहुत मज़ा आता ही है. नेटवर्किंग हो रही है. अगर मैं यंग इंडियंस नहीं ज्वाइन की होती, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती, तो शायद आज मैं यहाँ भी नहीं होती. और इनकी जो सोशल फेलोशिप्स होती हैं उनके भी आइडियाज़ इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं. अभी रिसेंटली एक फेलोशिप हुई है इनकी, मास्टर शेफ़ फेलोशिप. तो उसमें प्रॉपर उन्होंने शेफ़ को बुलाया है, पूरा किचन सेटअप किया है, एंड ईच YI मेंबर इज़ मेकिंग ओन डिश. वो मास्टर शेफ़ का पूरा कैप पहन के, एप्रन पहन के. इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग. पहले जो पाथ फाइंडर हुआ था, जो हमें पाथ फाइंडर जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो आए थे और उन्होंने बोला था जब से मैं YI ज्वाइन किया हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट, माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट YI. एंड मुझे तो बहुत ही कुछ मंथ्स हुए YI ज्वाइन किए हुए, एंड आवर लाइफ इज़ ऑल अबाउट YI. वी आर एंजॉइंग सो मच. अच्छा, हाउ इज़ अ पर्सपेक्टिव चेंज ऑफ इंडिया? आप लोग YI नेटवर्क का पार्ट बन गए हैं. धौलिया, यू ट्रैवल अ लॉट. वो ऐसी कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आप यंग इंडियंस में उधर जाते हैं, तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव था आपके माइंड में, वो कैसे चेंज हुआ यंग इंडियंस ज्वाइन करने के बाद? So I see India as a diverse yet very united country. We have unity in diversity, like you say. So I have met people from South India, I have met people from East India, from North India, everywhere. And we are separated only by our languages, but our mindset is all the same. ठीक है. So आइडियाज़, इतने आइडियाज़ आपको जानने को मिलते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों से मिलते हो, डिस्कस करते हो. इतने नए आइडियाज़ आपको मिलते हैं. अभी रिसेंटली
कोई एक YI चैप्टर ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें वो कश्मीर गवर्नमेंट से बात करके they have taken a delegation of YI members to Kashmir to understand what are the need gaps, what are the problems in Kashmir, ठीक है, and how we can solve the problems in Kashmir even professionally. So maybe if I have some business interest which I think can be useful in the state of Kashmir, and I join that delegation and I go there, I can start a business because the ministry is there to welcome you with both hands. प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा. There was an international summit where, by the way, you might not be knowing, YIS officially has a tie-up with the G20. Right. Yeah. Yes, that is a very very important aspect. So जो last G20 summit हुई थी, बनारस में भी उसका एक सेशन हुआ था. एंड अगर उस समय हमारा YI का चैप्टर बनारस में होता, the members of YI Varanasi would have got a exclusive interaction with all international ministers, being a member of the G20. So यूथ मिनिस्ट्री के अंदर भी YI की बहुत इम्पोर्टेंट से है. इनफैक्ट हमारे जो नेशनल चेयर हैं, वेरी सून वी आर वेरी होपफुल कि यूथ मिनिस्ट्री के अंदर एक परमानेंट उनकी चेयर होगी. दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स. हम लोग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस में जो ब्लड ग्रुप दिखता है ना, दैट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ YI. आप सोचो ऐसा ला सकता है. अगर वाराणसी चैप्टर को किसी एक और चैप्टर से कोलैब करना हो यंग इंडियंस के, तो किससे करेंगे एंड व्हाई? And you mean to say some other city? हाँ, अदर सिटी के चैप्टर में. I think I would like to collaborate our chapter with Same. Siliguri because they are doing amazing projects. They are doing amazing and projects. और उनका सोशल मीडिया पेज देखिए, आप फॉलो करिए. सो एक्टिव, इतना अच्छा उनका पार्टिसिपेशन है. वो अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं कि और लोगों का इंटरेस्ट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. Recently, they had invited Aman Gupta, the founder of Board. He came for I've their seen आपने शेयर किया था panel discussion. आपने किया था, किसी ने somebody had shared की यंग इंडियंस. In fact, Kolkata also is one of the कोलकाता chapters. ऑल्सो और चेन्नई में एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग Kolkata इनिशिएटिव्स is हो one रहे of हैं. the biggest and the most active chapters throughout India. They are going to organize the next annual event called Take Pride. And nationally we have already received 800 registrations of members, and they are talking about having 1200 registrations this year. And once everybody will be there for Take Pride, it's in December. They have 1 lakh square feet of space where multiple things will be going on, from panel discussions to learning sessions. I mean, there are so many things. There will be a master class for how to be an Stock market influencer, exchange. stock market, master class or on how to start your own podcast. And you can, everything is going on simultaneously. You can choose what you want to do, where you want to be. I had gone for their national event called Wi-Fi, and you'll not believe, we had Ashneer Grover live. We had the founder of Mitti Cafe there live. We had the general manager of BSC, the president of Edelweiss Tokyo, the founder of StockEdge. Mr. Ratan Tata was interacting with us live. Ritesh Agarwal, the founder of Oyo, he was on the screen interacting with 1200 YI members live. In which other platform have you ever heard so many prominent personalities coming together on one day for one organization? जैसे मैंने सुना यंग प्रेसिडेंट्स वाली जो YPO करता, बट इस लेवल पे तो इवन दे डोंट डू. ज्योतिरादित्य सिंधिया जी was there. I mean, आप इन लोगों के पास अगर कोई ऐसे अप्रोच करेगा तो शायद इनके पास बात करने का भी टाइम नहीं होगा. इम्पॉसिबल है, आप ऐसे अप्रोच भी नहीं कर Impossible, सकते. right, For them to impossible. travel all the way and be there for your program. It's huge. As you said that you have worked in several places, how has working in Varanasi always been different from like working in other places? And what are the challenges that you have faced? Would you like to take that? So
जब आप किसी सिटी में बॉर्न एंड बॉटअप होते हो, आप उसी मिट्टी के हो, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं लगता है। वो आपका अपना घर है, आपको उसमें डेवलपमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं, यू विल फाइंड योर वे। और जब आप में बहुत पैशन होता है ना कुछ करने का, जो आप चाहते हो वो चीज़ भी आपको चाहती है। सो फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी ईजी। मैं जो भी चैलेंजेस होते हैं, हाँ होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको जो करना है उसमें बहुत आपको लगता है कि शायद ये कल हो जाएगा, बट इट टेक्स 1 month, मोर देन अ मंथ। और बट वो हो जाती है क्योंकि आप इतने पैशनेट होते हो करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, स्पेशली जब आपको अपने घर के लिए। बनारस तो मेरा घर है, आई लव दिस सिटी बनारस, एंड इसीलिए मैं इसके लिए इतना काम करना चाहती हूँ। कुछ भी करना चाहते हैं हो जाता है, बस आप आइडिया। और बनारस में क्या है ना, प्यार बहुत है। अब मैं माहिर से आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, इंटरेक्शन हो रहा है, थर्ड टाइम बट इंटरेक्शन इस हाँ, तरीके interaction से पहली बार हो रहा है। नाउ आई कॉल हिम कि माहिर आई वांट टू डू दिस, बट आई गॉट टू नो कि आई कैन डू दिस विथ योर हेल्प। सो ही विल बी लाइक ओके, बताइए कब करना है, कैसे करना है। ये जो प्यार है ना, अपनापन है ना, वो मुझे लगता है वो इस सिटी में है। चीज़ें बहुत इजी हैं यहाँ पे करना, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप किसी को भी कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। और जो वो बनारसी वाला अपनापन है ना, वो आप फील करोगे इफ़ यू आर बॉर्न एंड बॉटअप हियर। मेरी लर्निंग ये है कि यहाँ पे बनारस पे काम करके आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड टू बी पेशेंट। राहुल भैया बिकॉज यहाँ बिकॉज यहाँ पे आप देखो, सबसे फनी चीज़ क्या है कि यहाँ पे रोड्स पे ना सब जल्दी में रहते हैं, बट कोई अपनी मंजिल पे टाइम पे नहीं पहुँचता, सब लेट पहुँचते हैं, राइट। और यहाँ के लोग हर चीज़ थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें एक अच्छी लर्निंग ये है ना, यहाँ पे बहुत मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है हर चीज़ की। आपको कोई भी काम करना है तो ऐसा नहीं कि उस काम को करने के लिए जो फर्स्ट थॉट आया उसके बेसिस पे आपने काम कर लिया। लोग सोचते हैं ठीक है, जल्दी किस बात की है, इसको इस एंगल से भी सोचते हैं, इस एंगल से भी सोचते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके आफ्टर इफेक्ट भी सोचते हैं। और भले ही टाइम लेते हैं, बट जो काम करते हैं वो एकदम सटीक होता काम दैट इज और बनारसियों के पास जो है ना, कोई भी प्लान फेल होने का ए से लेके जेड तक का प्लान होता है, प्लान बी सी डी। अब तो मुझे लगता है पीपल हैव कम अप विद ए स्क्वायर प्लान, ए क्यूब प्लान ऑल्सो। सो यहाँ पे कुछ भी करना हो जाएगी। आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, नॉट ओनली बनारस, आपको कहीं पे कुछ भी करना है, आपका इंटेंशन अच्छा है, सो यू विल डू इट। बनारस के लोगों की कुछ अच्छी खासियत जो है ना, वो ये भी है कि यहाँ पे हर चीज़ को ना बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करके बोला भी जाता है, बताया भी जाता है, प्रस्तुत भी किया जाता है, ठीक है। ये चीज़, ये ऐसी क्वालिटी है बनारसियों की जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे हम लोग मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। तो आई थिंक वो जो एक जो ब्यूटी है, चीज़ों को प्रेजेंट करने की जो आर्ट है ना, वो बनारसी से अच्छा कोई नहीं जानता। बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे सोशल मीडिया का बहुत कल्चर है, बहुत इन्फ्लुएंस है। सो मैंने पॉडकास्ट में ही आपके देखा था, आपने स्टाइल मिल को कवर किया था, उसका पॉडकास्ट किया था। अब हम जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो हम उसका फ्लायर प्रमोट करेंगे, हम उनको अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे प्रमोशन देंगे। बट मैंने देखा कि इन एग्जिबिशंस में क्या हो रहा है कि मैंने सौम्या भाभी को अपनी किसी फ्रेंड से मिलवाया, जस्ट हाय हेलो, और उन्होंने उनको फ्लायर भेजा और बोला प्लीज़ यार तुम भी इसका प्रमोशन करना। पीपल आर सो वेलकमिंग, मैं तुरंत करूँगी। उसके नेक्स्ट डे से मैं देख रही हूँ ऑल ऑफ देम आर प्रमोटिंग स्टाइल मिल। सो ये जो सब लड़कियों ने प्रमोट किया था, जितनी लेडीज, एक आदमी बस एक ही था, वो मैं था। सबने प्रमोट किया था। तो ये सौम्या भाभी की स्टाइल मिल की बात मैं नहीं बता रही हूँ। इफ आई विल डू समथिंग, यू विल इंट्रोड्यूस मी फॉर द फर्स्ट टाइम टू समवन एल्स, मैं भी उनको बोलूँगी ना, दे विल वेलकम मी, ठीक है, आई विल डू इट फॉर यू। People are very self-motivated in Banaras. I think that is one very unique feature. Everybody is very self-motivated. चाहे घर पे 100 प्रॉब्लम्स होंगी,
लेकिन वो आपसे मिलेंगे तो आप लगेगा कि सब कुछ एकदम मस्त है. मैं एक बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ. सो हमारा होटल है गदोलिया पे और हमारे कुछ गेस्ट थे और गदोलिया जो पुरानी न्यू पार्किंग बनी है उसके सामने पान वाला है और ठंडई वाले हैं. तो कुछ फॉरेनर्स थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ से विश्वनाथ टेम्पल कितना दूर है. ही डिड नॉट रिप्लाई. 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, बट पान वाले ने रिप्लाई नहीं किया. फिर वो चलने लग गए. फिर पान वाले ने उनको बोला, अरे भैया रुका, इधर आइए, आपको जो है पहुंचने में टाइम लगेगा 15 मिनट यहाँ से. तो बोले हमने तुमसे 5 बार पूछा, तुम क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे थे? तो बोला हम देख रहे थे आपकी स्पीड कैसी है चलने की. जब जब मैंने देख लिया तब मैं आपको बताऊंगा ना. ये पर्सपेक्टिव कोई दे सकता है लाइफ में. So I have a last question for you. How can one join Young Indians? धवल भैया is the best. So, in Young Indians, we have a separate team for each and everything. Like we just spoke about climate change and accessibility and entrepreneurship, learning. So similarly, we have a separate team, which is the membership team. And in each team, there is a chair and a co-chair. So like on the chapter level, I'm the chapter chair, but apart from the chapter, each vertical has their own chair and co-chair, and it's more or less like a independent body. So, and it's very democratic also. It's not that I have a say over the chair of the membership vertical. Okay, so if anyone is interested to join YI, they get in touch with us, because किसी न किसी को आप चैप्टर में जानते होगे जिसकी वजह से आपको पता चला होगा वाई के बारे में, तो आप डेफिनेटली उनको अप्रोच करोगे. एंड दैट मेंबर विल अप्रोच द मेंबरशिप टीम. जो मेंबरशिप टीम के हमारे वर्टिकल चेयर हैं, ही इज़ मिस्टर हर्ष जैन, who is also the co-chair of our chapter. So by default, whoever is the co-chair of the chapter is the chair of the membership team. So then the name will be discussed with the membership team, and if everybody in the membership team is comfortable having that particular person in the chapter, then more details about the person will be invited. And then there is a EOI form, expression of interest form, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल्स होती हैं जो आपको अपने बारे में भरनी होती हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कैसे मोटिवेशन मिला हुआ है ज्वाइन करने का, आप कितना टाइम दे पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर मेनी फॉर्म. नाउ दैट रिस्पॉन्स ऑफ दैट फॉर्म goes to the membership team chair and also to the secretariat of CII. So it is not solely So it is not solely our decision, it is also their decision. And even if we approve of somebody being a member, but if the secretariat has a problem with their background or their work or something related to them which they do not even feel it's important to share with us, they might just have the reservation, and if they say nahi isko nahi lena hai, even we cannot do anything. Yeah. So that is very proper structure. Right. Okay. As we wrap up, it's clear that the Young Indian is commitment to empowering communities through entrepreneurial action is just the beginning. With leaders like Mr. Dhaval Prakash and Mrs. Sakshi Peshwani, the future looks bright than ever. Thank you for joining us in this inspiring journey today. Together, we are building a better world, one step at a time. Stay tuned, stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you.